हेलो। एम ऑडिबल मैम? हाँ हाँ। मनी मेकिंग टॉपिक ना मैम? या मनी बैंकिंग? या You just stay silent because I'm recording also this lecture. या सॉरी। So we're going to start with money and banking. It's a very big unit, so I'm going to take it in two sessions. We're starting with types of money. Types of money may there are various types. If from exam point of view, you just need to know the differences between all the types. Okay. So what is the commodity money? First one, let's see. The commodity means commodity itself. The English word commodity means some object which carries a value. Okay, an object which carries a value. So for example, gold itself has some value. Okay, silver, platinum, all the precious metals that carry value, they will be called commodity money. Okay. Next is metallic money. Of course, metallic money also means the same, all the metals that carry value. Metals that carry value. Okay. Paper money is our modern currency, the paper notes. Credit money. Credit money means the one that we take as a loan. Okay, that the one that we take as a loan, it is also called near money because it is in the form of currency only. Okay. Plastic money means debit card or credit card. Of course, plastic cards, no. That's why it's called plastic money. Now, last two are very important. Fiat and legal. Now, legal is currency that's backed by government. That's why it's called backed by government. That's why we are calling it legal. Why? Because it's somewhere backed by some act or law. Okay, this is the reason why we are calling it legal. While the what's the difference then between fiat and legal? Legal is it's backed by government and also accepted as a currency. Okay, accepted as a currency. While fiat may be backed by government, but it's not accepted currently in the as a transaction money. For example, 500 rupee note now is a fiat money, but previously it was a legal tender. Legal tender. ठीक है. But currently 100 rupee note is a legal tender. Okay, so fiat is the one that's backed by government, but it's not currently used or in transaction. Okay. So this is fiat money. Now these are the these are very basic things. Money function. What is the function of money? As a medium of exchange, store of value, assigning value to goods. If there is any doubt, let me know. Until now. ओके, नो डाउट्स। Okay. So next is we need to know a term. Bond. Bond means bond is a paper which carries some value. Okay, so if let's say I say that this government is issuing a bond, I will say that this government is issuing a paper which has some face value, let's say 100, and if I buy it, let's say I have bought it today, I will be paid some interest on it, like let's say rupees 10 per year.
Okay, so this is how the bonds work. Bonds could be of several types की वो हम आगे पढ़ेंगे जिस तरह से फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर का बॉन्ड, Okay. अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बॉन्ड इशू कर रही है इसका मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रेज द मनी via bonds, and when people buy these bonds they are given some return in the form of interest. Okay, so what's written this is called face value, at the price at which I as a retail person is going to buy this bond. This is called face value. Okay, this is called face value, and this is the interest that I'm going to be paid every year, or there might be some interest. It's all written in the bond whether the interest will be paid annually or monthly. So basically this is the basic concept of bond, that it's a paper which holds some value, and it's raised, it could be raised by corporations also and government also. Okay, now next is these are the very small points, shadow pricing, that I will discuss later. Okay, first we'll cover the basics of money and banking. So next is measure of money. Is there any example? Could you, ma'am, please elaborate on that last line? Which one? Uh, Last one is we have any example? क्या बॉन्ड का? हाँ हाँ हाँ. बॉन्ड का बता तो दिया कि पेपर पर एक गवर्नमेंट माइट इशू अ बॉन्ड. पेपर है एक, इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ पेपर विच होल्ड सम फेस वैल्यू एंड देन इंटरेस्ट इज पेड. Yeah. Got it, got it. ठीक है. नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में the thing is we are going to study various types of money depending on their liquidity. Now what does the word liquidity means? Liquidity means something that is readily available, let's say in cash. We say that money is liquid, which is easily available in cash. So for example, house versus my debit card, which is more liquid? Of course debit card is more liquid, because with my debit card and using ATM I can have my cash very easily available to me. But to sell this house I'll have to wait pretty long. So we say this real estate asset is not that liquid. Okay, now so we'll study various types of money based on their liquidity and their use in the money market and money supply. Now first one very important is M0, which is also called money supply, high power money, or monetary base for RBI. It has various names. I've written these names: high powered money, base money, monetary base, government money भी बोलते हैं इसको. और तो इस M0 में क्या होता है? M0 में होता है currency which is in circulation. Currency which is in circulation means currency that's lying in our pocket in the form of cash, coins. This is currency in circulation. Next is banks deposit with RBI. Banks deposits with RBI are CRR. CRR is cash reserve ratio. This is some ratio. This is some amount of money that all the banks have to keep with RBI. Okay, all the banks have to keep with RBI. So it consists of currency in circulation,
banks deposit with RBI and other deposits with RBI. So here also you can see money monetary base is equal to currency or coin with public, vault cash of commercial bank, this is CRR only, deposits of commercial bank with RBI, CRR or SLR, statutory liquidity ratio. These are some sort of ratios that all the banks have to maintain with RBI. For example, if I'm depositing 100 rupees with a bank, then it has to deposit some percentage, let's say 4% or 4 rupees with RBI, जस्ट लाइक अ बैकअप कि कल को अगर बैंक रन हो जाए या कुछ भी हो जाए तो द बैंक हैज़ सम अमाउंट टू पे बैक इट्स डिपॉजिटर्स. ओके, तो नेक्स्ट इज दिस वॉज M0 which is very important, high powered money. Any doubt with M0? No, ma'am. Okay, cool. So next is M1. M1 is called narrow money. Let's see why. Here I have made this chart and I want to explain this chart first, how I have written here. This is scheduled commercial bank. First of all, CU is, these are the short forms which you have to like just uh, adapt them with me with my notes. So CU is currency in circulation, SCB is scheduled commercial banks, next is post office savings. Now scheduled commercial banks में भी दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं. वन इज डिमांड डिपॉजिट, नेक्स्ट इज टाइम डिपॉजिट्स. एवरीवेयर देर आर टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स. वन इज डिमांड डिपॉजिट्स एंड नेक्स्ट इज टाइम डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट होता है जो हम एकदम रेडिली अवेलेबल कैश हम डिपॉजिट कर रहे हैं, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी मैं अपना अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर रही हूँ, दैट इज़ डिमांड डिपॉजिट. वाइल टाइम डिपॉजिट इज़, डिमांड डिपॉजिट मेरे को एकदम रेडिली अवेलेबल होगा, ठीक है, बट टाइम डिपॉजिट मेरे को एक फिक्स्ड टाइम के बाद ही मिल पाएगा, मैं उसको कभी भी निकाल नहीं सकती हूँ. दैट इज़ द रीज़न वाई, फॉर एग्ज़ाम्पल FD, अगर मैंने आज 1000 रुपये की FD कराई है तो देर आर सम नॉर्म्स विच आई हैव टू फॉलो विद FD. फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल से पहले मैं नहीं निकाल सकती हूँ या 2 साल से पहले नहीं निकाल सकती हूँ. एंड इट्स नॉट ईजी टू विदड्रॉ ऑल द मनी ऑल्सो, देर इज़ सम परसेंटेज इन्वॉल्व कि मैं इतना ही परसेंटेज निकाल सकती हूँ, इस तरह से, ठीक है. सो इनमें क्या होता है कि डिमांड डिपॉजिट, बिकॉज इट्स वेरी रेडिली अवेलेबल टू मी, सो डिमांड डिपॉजिट इज़ मोर लिक्विड as compared to time deposit, ठीक है. डिमांड डिपॉजिट इज मोर लिक्विड as compared to time deposit. Now this is clear what is demand deposit and what is time deposit. Now it happens such kind of deposits are there with both scheduled commercial bank and post office savings. Now next is, let's see what is M1. M1 में करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस शेड्यूल कमर्शियल बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स ओनली, दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ M1. M2 में करेंसी इन सर्कुलेशन तो सब में ही है. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल which has been asked, questions from this table have been asked in previous years and in several exams, so you have to get this concept very clear. So M1 M2 M3 M4 सब में करेंसी इन सर्कुलेशन तो होना ही है, ठीक है. नाउ M1 में करेंसी इन सर्कुलेशन है प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है ओनली. M2 में करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस शेड्यूल कमर्शियल बैंक का डिमांड डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग का डिमांड डिपॉजिट, ठीक है. दोनों के सिर्फ डिमांड डिपॉजिट हैं, दोनों के सिर्फ डिमांड डिपॉजिट हैं. नेक्स्ट में हम लेंगे M3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करेंसी इन सर्कुलेशन ऑब्वियसली प्लस शेड्यूल के सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक के डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट. सो M3 इज़, we have to notice this very
very keenly that M3 is only about scheduled commercial bank, and it's not about post office savings at all, be it demand deposit or time deposits of post savings. ठीक है, so this is M3, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस शेड्यूल कमर्शियल बैंक का टाइम डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट। M4 में वी टेक ऑल ऑफ देम, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स दोनों का टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट एंड करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है, नाउ इज देयर एनी डाउट विद दिस टेबल? No. Okay, fine. So now we have to notice that as we are going downwards from M1 to M4, our liquidity is increasing. Can we say this? Yeah. Yes. It is increasing. Definitely. Because see, M1 में क्या था? This is also very readily available to me. This is also very readily available to me. This is highly available. liquid. M1 is highly liquid. ठीक है, now M2 में M2 again, this is also readily available, this is also readily available, and this is also very readily available. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स का डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है, जस्ट लाइक कि पोस्ट ऑफिस सेविंग में मैंने जाके एक अकाउंट खुलवा लिया और अपने कुछ ₹1000 डिपॉजिट कर दिए. सो दिस इज ऑल्सो लाइक वेरी मच लिक्विड, बट ऑफ कोर्स with this added element it's less liquid than M1. But when it comes to M4, it has both the time deposits of both these elements, scheduled commercial and post office savings. This is the reason why we say the liquidity is decreasing as we are moving from M1 to M4. Is this clear? Yeah. ठीक है, तो this also indicates if the liquidity is decreasing as we move from M1 to M4, it also indicates that there is a shift of money feature as medium of exchange to a store of value. ठीक है, from medium of exchange to a store of value, because medium of exchange is when it's high, when I have liquid money, then I use it as medium of exchange. But when liquidity is decreased, then it's more of a store of value ना. FD is what, फिक्स डिपॉजिट अगर मैं कराती हूँ, इट्स मोर ऑफ अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इट्स नॉट लाइक माई मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मैं जाके FD से कुछ दूध या सब्जियाँ नहीं खरीद सकती हूँ, ठीक है, इट्स नॉट रेडिली अवेलेबल टू मी. ठीक है, so money supply is a stock concept. Now stock concept versus variable concept क्या क्या होता है? इसको, ये important concept है. stock concept होता है जिसको हम एक particular time में, एक particular point of time, this is important phrase, पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम मेजर कर सकते हैं तो वो स्टॉक कंसेप्ट है. बट अगर हम उसको पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर नहीं कर सकते तो वो वेरिएबल कंसेप्ट है. वेरिएबल, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल GDP क्या है? क्या बता सकते हो तुम? GDP क्या है? स्टॉक या वेरिएबल? GDP is a stock. Very good. GDP is a stock because GDP is a very measurable quantity, measurable number. ठीक है, so it's a stock concept. But ठीक है, और next is, तो ये हमने पढ़ लिया. This is M0 high powered money, M1 narrow money, and because the liquidity is decreasing, for that same reason M3 is called broad money. ठीक है. Now why is M3 important? Why we are stressing so much on M3? It's because see, there is this concept called money multiplier. What is money multiplier? Money multiplier ये होता है कि बैंक्स में, I'm just giving you a very crude example. बैंक्स में क्या होता है, अगर आप 100 रुपये मैं डिपॉजिट करा रही हूँ, तो what is happening here is 100 रुपये अगर मैं डिपॉजिट करा रही हूँ
तो बैंक को कुछ परसेंटेज रेशियो तो ऑफ कोर्स जो आरबीआई ने कहा हुआ है सीआरआर एसएलआर सेव करके रखना है, वो तो बैंक को सेव करना ही है। तो लेट्स से जस्ट फॉर आर कन्वीनियंस कि वो परसेंटेज 10 है, तो बैंक 10 रुपये अपने आरबीआई के पास सेव कर देगा, रेस्ट 90 जो है वो लोन में दे देगा। तो ये जो 90 रुपीज़ है, दिस इज़ एक्चुअली बैंक का एसेट। नाउ मैंने 100 रुपये जमा किए थे बैंक के पास, बैंक ने 90 रुपये सागर को लोन में दे दिया, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इज़ ये जो 90 रुपये हैं ये सागर के बैंक अकाउंट में चले गए हैं। नाउ दिस इज़ व्हाट कि दिस 90 रुपये इज़ बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट। नाउ 90 का 10% कितना हुआ? 90 का 10% कितना हुआ? 9 रुपीस। हाँ, 90 के 10 रुपये 9 रुपीस में। 90 का 10% कितना हुआ? 90 का 10% ना? हाँ 10 रुपीस। अरे यार 90 का 10% ये 9 रुपये नहीं हुआ? तो ये 9 रुपये यहाँ पे सेव करवा देगा, 9 रुपये 9 रुपये यहाँ पे सेव करवा देगा, ठीक है। और 81 रुपीज़ ये जो बैंक है जो 90 रुपये सागर के डिपॉजिट में है, वो उसमें से 81 रुपीज़ दोबारा लोन पे दे देगा वो। अब वो लोन पे दे देगा किसी और इंसान को, लेट्स से राहुल को उसने लोन पे दे दिए। सिमिलरली ये एक चेन है जो चलती जाएगी, ठीक है। सागर के 81 रुपीज़ अब बैंक के लिए डिपॉजिट बन गए। नाउ अगेन बैंक विल डिडक्ट 10% फ्रॉम दिस एज इट्स CRR SLR, and remaining rest of the amount will be given as loan, which is loan for bank is asset, and deposit for bank is this is the reason why we consider deposit for bank as asset, ठीक है। however this ratio is liability, क्योंकि एसेट ये क्यों है? क्योंकि जो भी डिपॉजिट हो रहा है उसको बैंक लोन पे दे रहा है और लोन से बैंक इंटरेस्ट कमा रहा है, इसीलिए ये बैंक के लिए ये इसीलिए एसेट है, ठीक है। बट CRR पे बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं कमा रहा है, दिस इज़ द रीज़न वाई दिस इज़ जस्ट अ लायबिलिटी, ठीक है। नाउ this is the reason why this whole cycle that I explained right now कि 100 रुपये से किस तरह बैंक more than even 1000 रुपीज़ बना लेगा, 1000 times रुपीज़ बना लेगा, this is called money multiplier. Money is being multiplied. Money is being multiplier. This is the reason why we call it money multiplier. Now money multiplier का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो इट इज़ M3/M0, ठीक है। M3 ब्रॉड मनी अपॉन मॉनेटरी बेस, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है दैट्स 1/CRR, 1 अगर परसेंटेज निकालना है तो 1/CRR × 100 ये होता है, ठीक है। इज़ देयर एनी डाउट? No. ओके Perfect. फाइन, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, मेजर ऑफ मनी सप्लाई, जो आपको अच्छे से समझ लेना है बिकॉज इट इज़ बीइंग आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स एट वेरियस लेवल्स, ठीक है। नाउ जो मनी मल्टीप्लायर है, मनी मल्टीप्लायर ऑफ कोर्स इज़ वेरी गुड फॉर बैंक्स, बिकॉज इससे क्या हो रहा है कि बैंक्स के एसेट बढ़ रहे हैं, बैंक्स का जो लोन देने की टेंडेंसी है वो बढ़ रही है। तो once this question was asked कि on what factors the money multiplier will depend. So money multiplier किस इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग होगा या फिर किस इकोनॉमी में ज़्यादा होगा, ये हमें समझना है। नाउ मनी मल्टीप्लायर उस इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग होगा फर्स्ट ऑफ ऑल
लोग कॉमन सेंस यूज़ करो, लोग बैंक में अपना पैसा जमा कराएंगे तभी तो वो पैसा लोन में कन्वर्ट होगा। तो बैंकिंग हैबिट्स लोगों की बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। जितना ज़्यादा लोगों की बैंकिंग हैबिट होगी, बैंक में पैसा रखने की हैबिट होगी, उतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा। बट अगर लोग बैंक में पैसा जमा ही नहीं करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू दैट मनी विच इज़ lying with people which is lying with people which is M0 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। मनी विच इज़ lying with people in their pockets in the form of currency and coins should be minimum, ठीक है। सो ज़्यादा बैंकिंग हैबिट होगी, ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर होगा, ठीक है। Yes. ठीक है। नेक्स्ट इज let's see. Next we are going to come to कि मनी मार्केट में various types of institutions which are there, ठीक है। फर्स्ट इज़ मनी मार्केट में ऑफ कोर्स अनऑर्गेनाइज्ड लैंडिंग होती है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि इट्स नॉट रेगुलेटेड बाय RBI, ऑफ कोर्स इनफॉर्मल लैंडिंग है ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि शाहूकार होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, ये टाइप की इनफॉर्मल लैंडिंग जो है इसको अनऑर्गेनाइज्ड लैंडिंग बोलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है ऑफ कोर्स उसमें सबसे पहला तो हमारा RBI आता है, और ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस में RBI आता है। ऑफ कोर्स RBI इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टली लेंडिंग टू retail or individuals like us. So but we talk about institutions in money market. First is RBI, which is Central Bank of India, ठीक है। Next is DFHI, which is Discount and Finance House of India. Okay, this is this DFHI, it's a body. I'll expand about it in detail in the next session. Okay, first today we'll talk about the scheduled commercial banks and commercial banks, ठीक है। तो what are scheduled commercial banks? शेड्यूल्ड, हम इसको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये RBI एक्ट के शेड्यूल 2 में लिखे हुए हैं, शेड्यूल 2 ऑफ RBI एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो RBI एक्ट के शेड्यूल 2 में मेंशन्ड है, एंड अनदर वन इज़ नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। ऑफ कोर्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में एक होते हैं जिनमें गवर्नमेंट ओनरशिप मैक्सिमम होती है, और वो है गवर्नमेंट ओनरशिप अगर मैक्सिमम है तो वो है पब्लिक सेक्टर बैंक। नेक्स्ट इज़ प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसमें प्राइवेट ओनरशिप मैक्सिमम है, एंड देन डिफरेंशियल बैंक्स। डिफरेंशियल बैंक्स में आते हैं इस टाइप के रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स। क्या? No, I said the cooperative banks. Cooperative banks come under this non-scheduled commercial banks. Non-scheduled commercial banks के अंदर cooperatives आते हैं, ठीक है। ये सब लेकिन शेड्यूल्ड हैं। RRB, LAB, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, ये सब शेड्यूल्ड है, ठीक है। अब लेट्स एक्सपैंड ऑन देम। RRB रीजनल रूरल बैंक का जो रेगुलेशन है ये इम्पॉर्टेंट है। ये दो लोग इसको रेगुलेट करते हैं। वन इज़ अ बॉडी कॉल्ड NABARD, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक, और RBI, ये इम्पॉर्टेंट है। और
इसमें सेंटर स्टेट और जो मेन बैंक है उसकी स्टेक होल्डिंग्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है 50%, 15% एंड 25%। ठीक है, एनी डाउट? Yeah, ma'am. No, yeah. तो ये होते हैं रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट इज लोकल एरिया बैंक्स। लोकल एरिया बैंक्स होते हैं जैसे कि जो, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे डिटेल में इसको लिखा हुआ है। Yeah. 4 is 3 लोकल एरिया बैंक्स होते हैं जो बहुत छोटे कैपिटल से स्टार्ट करते हैं बट देन दे कन्वर्ट ग्रेजुअली ओवर टाइम टू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड देन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। और इनका क्राइटेरिया ये होता है कि ये 3 कॉन्टिजियस डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल हैं तो उसको लोकल एरिया बैंक है। कॉन्टिजियस मीन्स जो सटे हुए हैं। ठीक है, 3 कॉन्टिजियस डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल हैं तो ये मैक्सिमम, तो ये इसको लोकल एरिया बैंक बोल रहे हैं। ठीक है, Okay, yeah. तो वेवर भी, और उसी तरह से पेमेंट बैंक होते हैं। पेमेंट बैंक होते हैं जैसे कि हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक है, ठीक है, या फिर पोस्ट ऑफिस का पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक में ये होता है कि सिर्फ मैक्सिमम 1 लाख तक का डिपॉजिट अलाउड होता है। 1 लाख तक का डिमांड डिपॉजिट अलाउड होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है पेमेंट बैंक का। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि CRR मैंने आपको बता दिया। CRR एक वो रेशियो होता है, कैश रिजर्व रेशियो, जो हर बैंक को RBI के साथ मेंटेन करना होता है। RBI के पास मेंटेन करना होता है इन फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, और इन फॉर्म ऑफ कैश तो करंटली इट्स परसेंटेज इज़ 4%। अगर बैंक के पास टोटल 4% ऑफ NDTL मीन्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। तो अगर उसके पास नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स और लायबिलिटीज़ अगर 100 रुपये है तो वो 4 रुपये कैश में एज अ CRR RBI के पास रखेगा। ठीक है, दिस इज़ CRR रेशियो। नाउ नेक्स्ट इज़ SLR रेशियो। SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, स्टैट्यूटरी इटसेल्फ मीन्स कि a ratio that's governed by legally, which is governed by an act. Okay, now which act this is? This is under bank act. बैंक एक्ट के अंदर SLR प्रिस्क्राइब्ड होता है जो हर बैंक को मेंटेन करके रखना होता है, और ये करंटली आई थिंक 14% है। अब इसमें क्या होता है कि ज़रूरी ही नहीं है कि बैंक को कैश ही रखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बैंक गोल्ड या फिर बॉन्ड्स, ये सब चीज़ें भी अपनी SLR के कोटा में रख सकता है, विच इज़ अगेन 14% ऑफ NDTL। ठीक है, तो बट ये जो SLR है, डिफरेंस CRR और SLR में ये है कि CRR इज़ केप्ट विद RBI एंड SLR बैंक कीप्स विद इटसेल्फ। ठीक है, एंड CRR is mandated under RBI Act,
SLR is mandated under Bank Act. Bank Act. ठीक है. Now Yeah. the important thing here is that जो पेमेंट बैंक है उसमें क्या होता है कि हम सिर्फ 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उनको अलाउड नहीं होता. एंड स्टिल दे हैव टू मेंटेन सम परसेंटेज ऑफ CRR एंड SLR. इट्स नॉट नेसेसरी कि इनका CRR SLR नॉर्मल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के बराबर ही हो, ठीक है, बट दे हैव टू मेंटेन CRR एंड SLR. ठीक है. SLR. Yeah. Okay. Now, next is नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस. इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में. इनको नॉन बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनको IFI भी बोलते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. मोस्टली दे आर 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट. इसको याद रखो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. दे आर 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल EXIM. EXIM is what? Export Import Organization. What does this organization do? It gives loan to exporters to promote export, or importers also in some cases where some capital goods or some important goods are to be imported. ठीक है. So it gives loans and eases the export import businesses. This is EXIM. Next is NABARD. NABARD is for एग्रीकल्चरल लोन्स. एग्रीकल्चरल लोन्स में ये क्या होता है कि ये डायरेक्ट फार्मर्स को लोन नहीं देते हैं. दे गिव लोन टू RRBs गिव लोन टू फार्मर्स. सो इनडायरेक्ट लोन देते हैं ये फार्मर्स को. ठीक है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये इनडायरेक्ट फार्मर्स को लोन दे रहे हैं. नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर इज़ बिकॉज NABARD इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट बॉडी. it was made under B. Sivaraman committee recommendation. Okay. Sivaraman ना? ये लिखा हुआ है Sivaraman. ठीक है. This I've made these small points with my own research. ठीक है. And also very important thing that they regulate RRB. Next is SIDBI. Similarly, SIDBI is also 100% government owned, and it gives small industry. It gives loans to MSMEs, micro, small and medium industries. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ ये हम आगे जाके पढ़ेंगे. इनका एक क्राइटेरिया होता है कि किस इंडस्ट्री को हम कौन सी कंपनीज़ को माइक्रो बोलते हैं, स्मॉल बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं. The government has made some norms based on their turnover and profit, etc., based on which we decide under which category they fall, micro, small or medium. ठीक है. Now Yes. These are non-banking institutions. So mostly they are owned completely by the government. ठीक है. फिर नेक्स्ट हम इस पे आते हैं. नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स सिर्फ वो है जो RBI एक्ट के शेड्यूल में मेंशन नहीं है. एंड दे आर कोऑपरेटिव्स. क्या होता है कोऑपरेटिव? कुछ नहीं है, बस बेसिकली ये होता है कि अगर हम एकदम छोटे से लेवल से, गांव के लेवल से देखें, जिसको हम पैक्स बोलते हैं, वो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल बहुत छोटे छोटे गांव के जो सपोज़ करो कि अगर हम बोल रहे हैं कि फार्मर कोऑपरेटिव्स है या डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं, तो उसमें क्या हुआ कि एक गांव के ही लेट्स सपोज कि 50 लोग आपस में आ गए एंड दे गैदर सम मनी
एंड दे स्टार्ट देयर ओन डेयरी बिजनेस, दूध इकट्ठा करके और फिर उसको किसी सिटी एरिया में बेचो, ट्रांसपोर्ट करो, पैकेज करो, इनको कोऑपरेटिव्स कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर विलेज के लेवल पे है तो इसको पैक्स बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बोलेंगे, स्टेट के लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बोलेंगे, अर्बन एरियाज़ में है तो अर्बन कोऑपरेटिव बोलेंगे, और बहुत सारी कॉन्टिजियस स्टेट्स को मिला के अगर है या फिर बहुत बड़ी कोई है कोऑपरेटिव जैसे अमूल, तो उसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बोलेंगे। Now, multi-state cooperative and urban cooperative, very important. They are regulated by RBI. They are regulated by RBI, and they have to fulfill their CRR, SLR norms. ठीक है. Now, next is state cooperative and district cooperative and PACs. They are regulated both by partially by RBI and partially by state government, because इसमें मेजर रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट का होता है, RBI इज जस्ट फॉर गिविंग द डायरेक्शंस. दिस वाज द इम्पोर्टेंट पार्ट. ठीक है, इसमें कोई डाउट? No, perfect. नाउ निधि कंपनीज ये होती हैं कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं विच आर अंडर निधि रूल्स, जो चिट फंड वगैरह ये सब चीज़ें काम करते हैं. तो इसमें ये होता है कि इनका मिनिमम कैपिटल बेस 5 लाख का होना चाहिए. ठीक है, और दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम RBI's लाइसेंस रिक्वायरमेंट. एंड हु रेगुलेट्स देम, दिस इज इम्पॉर्टेंट, नॉट RBI की लाइसेंस रिक्वायरमेंट में तो है ही नहीं है. तो निधि कंपनीज को MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रेगुलेट करता है. ठीक है, और ये सब मैंने कुछ अपने नोट्स में से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है, तो ये आप बाद में क्लास के बाद रीड कर लेना. ठीक है, जैसे Sure, कि sure, ये sure. मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव. Even I note it down proper way in my writing. The act establishes a separate authority to conduct and supervise elections. इनके इलेक्शंस होते हैं मल्टी कोऑपरेटिव्स के. डेडिकेटेड act provides for a dedicated fund for revival of sick MSCC. This is also a correct statement. The act allows share held in a multi-state cooperative by the central government to be redeemed based on bylaw. नहीं, ये सिर्फ प्रायर अप्रूवल, रिटन अप्रूवल से ही रिडीम हो जाते हैं जो शेयर्स हैं. ठीक है, कोई एक्ट की ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. एक तो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और एक होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो हमने यहाँ पे रीड किए थे. IFIs को NBFCs भी बोलते हैं. ठीक है, IFIs को NBFCs भी बोलते हैं. नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर टू बी नोटेड इज दैट RBI does not promote demand deposit or the ones that accept deposit type of NBFCs. Okay, RBI only promotes those NBFCs that do not accept demand deposit. Okay, so दो टाइप के NBFCs होते हैं, NBFC D that accepts deposit and NBFCs that do not accept deposits. ठीक है, NBFCs जो होते हैं वो कंपनीज एक्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये कंपनीज एक्ट के अंडर आते हैं. एंड हाउ आर दे इम्पॉर्टेंट? some of the NBFCs are, first of all, who regulates them? This is important. Various organizations regulates them. So for example, the ones that are giving loan to MSME, they will be regulated by SIDBI. The ones that are in insurance sector, IRDAI regulate करेगा उन्हें. ठीक है, IRDAI रेगुलेट करेगा उन्हें. इसी तरह से अलग अलग रेगुलेटर्स होते हैं इनके. ठीक है, हाउएवर गवर्नमेंट
गवर्नमेंट बेस्ड एनबीएफसीज ये है नाबार्ड और सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये सब गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसीज है। ठीक है, एनबीएफसीज में कोई डाउट है? No. Okay, got it. ठीक है, सो our next slide is going to be लोकल एरिया बैंक्स हमने रीड कर लिया था कि अगर एक से 3 तक कॉन्टिजियस डिस्ट्रिक्ट में अगर बैंक है, छोटे बैंक्स, तो उनको लोकल एरिया बैंक्स बोलते हैं। उसी तरह से एक नियो बैंक होता है जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस है जिसकी। फॉर एग्जांपल एक ऐप आता है आजकल जुपिटर, इसमें आप अपने पैसे सेव भी कर सकते हो और बाकी सारी बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हो, बट इट्स प्रेजेंस इज ओनली डिजिटल। ठीक है, नियो बैंक के साथ साथ एक होता है डिजिटल बैंकिंग यूनिट। जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है वो नॉर्मल बैंक, फॉर एग्जांपल एसबीआई, आईसीआईसीआई, जो फिजिकली भी प्रेजेंट है, उन्हीं का डिजिटल फॉर्म है। इनको डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स कह रहे हैं। ठीक है, ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है फर्स्ट पेज पर ही। ठीक है, यू कैन गो थ्रू इट। ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट, and they have been started with the help of RBI, Government of India and Indian Banking Associations. Indian Banking Association एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये क्या है, कम्प्लीटली पेपरलेस ब्रांच है जहाँ पे सारी चीज़ें डिजिटल होंगी। और रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, पेमेंट बैंक, इन सबको भी अलाउड है डिजिटल बैंकिंग यूनिट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को अलाउड है, आरआरबी, एलएबी और पेमेंट बैंक्स को भी अलाउड है। ऑफ कोर्स ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि नाउ दैट द गवर्नमेंट इज़ ऑन स्प्री ऑफ डिजिटाइजिंग इंडिया एंड प्रमोटिंग द डिजिटल इंडिया, हर टाइप के बैंक को डीबीयूज अलाउड होंगे ताकि पेपरलेस बैंकिंग हो और डिजिटल बैंकिंग हो। ठीक है, एंड दे कैन इशू डेबिट कार्ड। ये तो मैंने लिख दिया है ऐसे, बट दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन सेंस काइंड ऑफ थिंग बिकॉज ऑल द बैंकिंग सर्विसेज आर हेयर, ऑल द बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, नो नेक्स्ट इज 3 4 हो गया। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट था डिफरेंशियल बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक। ठीक है, ये देखो, ये मैंने इधर लिखा हुआ है, आरबीआई डिस्करेजेस डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। आप जब इसको रिवाइज करोगे तो इसी ऑर्डर में रिवाइज करना जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, नंबरिंग करी हुई है, बिकॉज माई नोट्स आर नॉट वेरी ऑर्गेनाइज। ठीक है, सो आरबीआई डिस्करेजेस डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज एंड इनकरेजिंग नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज and they are not covered under DICGC। DICGC जो बॉडी है, ये इसके बारे में हम आरबीआई के सेक्शन में पढ़ेंगे। ये एक्चुअली वो बॉडी है जो एक्चुअली डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस देती है। ठीक है, बैंक के डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस देती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दिस कि एनबीएफसीज आर नॉट कवर्ड बाय डीआईसीजीसी, बाकी शेड्यूल्ड बैंक्स आर कवर्ड बाय डीआईसीजीसी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंशिएटेड बैंक। डिफरेंशिएटेड बैंक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दे वर मेड अंडर नचिकेत मोर कमिटी। ठीक है, और इसके अंदर 2 टाइप के बैंक्स आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है? Small finance bank are scheduled commercial banks. Payment banks are not scheduled commercial banks.
ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में ये होता है कि इनका मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होता है वो 200 करोड़ तक का होना चाहिए, और इनकी 25% ब्रांचेस जो हैं 25% ब्रांचेस जो हैं वो अनबैंक्ड एरिया में होने चाहिए। ऑफ कोर्स स्मॉल फाइनेंस बैंक का मोटिव ही ये है बैंकिंग पेनिट्रेशन, जितने ज़्यादा एरियाज़ में बैंक खुल पाएँ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए एंड फॉर सिटीजन्स एट लार्ज। ठीक है, तो 25% ऑफ देयर ब्रांच शुड बी इन अनबैंक्ड एरिया, 200 करोड़ का मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, एंड दे कैन प्रोवाइड all the other facilities that scheduled commercial banks give, like pension schemes, foreign exchange जहाँ पे होता है बैंक्स में, नॉर्मल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में, उसी तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी हो सकता है, इंश्योरेंस स्कीम्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ठीक है, और इसमें दे कम अंडर RBI एक्ट। All types of deposits are accepted, demand deposits and time deposits. They can provide loan also. ठीक है, now the difference between small finance bank and payment bank is कि payment bank में हमें पता है एयरटेल के पेमेंट बैंक पे हम सिर्फ 1 लाख रुपए का बैलेंस रख सकते हैं, और ये कोई भी ये जो पेमेंट बैंक है ये किसी भी टाइप का लोन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कोई लेंडिंग एक्टिविटी इनको अलाउड नहीं होती। नाउ दिस इज़ वेरी लाइक ऑब्वियस एंड कॉमन सेंस कि अगर ये 1 लाख रुपए का बैलेंस रख रहे हैं तो इनको CRR SLR भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि CRR SLR का अल्टीमेट मोटिव क्या होता है? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोटिव्स ऑफ CRR SLR इज़ अ सिक्योरिटी फॉर द डिपॉजिटर। ठीक है, कि कभी बैंक रन हो गया या कुछ भी टाइप का इंसॉल्वेंसी हो गया तो CRR SLR आर लाइक बैकअप्स कि यहाँ से आप अपने डिपॉजिटर्स को उनका पैसा दे दोगे। ठीक है, लौटा सकते हैं, हाँ, तो दे कैन ओपन डिमांड डिपॉजिट बट नॉट टाइम डिपॉजिट, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक में दोनों अलाउड है। स्मॉल फाइनेंस बैंक आर ऑब्वियसली लार्जर बैंक्स दैन पेमेंट बैंक्स, ये तो हमें पता है। ठीक है, एनी डाउट? No, perfect. ठीक है, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज हाँ, अब हम आते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। यहाँ पे हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट में भी 2 टाइप के मार्केट्स होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो होता है जिसमें मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है, और कैपिटल मार्केट वो होता है जिसमें मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा की होती है। नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब ये अगर मैं तुम्हें बहुत छोटा सा टेबल समझाऊँ तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी में क्या क्या है। गवर्नमेंट के यहाँ है और कॉरपोरेशंस के यहाँ है। ठीक है, मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ये है, ये मैंने छोटा सा लिखा हुआ है CMB, कैश मैनेजमेंट बिल। ठीक है, गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट बिल जब इशू करता है, CMB जब इशू करता है, तो ऑब्वियसली उसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर सेइंग इट फॉल्स अंडर मनी मार्केट। या फिर ट्रेजरी बिल या WMA, जिसको हम बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इसको हम एक्सपैंड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, और मनी मार्केट में अगर हम कॉरपोरेशंस की इशूड सिक्योरिटीज़ देखें तो इसमें इस टाइप की चीज़ें होती हैं: बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट्स, कॉल मनी, नोटिस मनी। ठीक है, और अगर हम कैपिटल मार्केट में विच इज़ फॉर लॉन्गर टर्म, इसमें अगर हम टर्म्स देखें तो
गवर्नमेंट अगर इशू करे तो उसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, सॉवरेन बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो होते हैं ऑफ कोर्स लंबे टाइम के लिए, वो भी कैपिटल मार्केट में ही फॉल करेंगे। नेक्स्ट इज़ अगर हम कॉरपोरेशंस अगर लॉन्ग टर्म में इशू करें सिक्योरिटीज़, तो उनको बॉन्ड्स या डिबेंचर्स बोलते हैं। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में कोई फ़र्क नहीं है। बॉन्ड आई थिंक यूरोपियन मार्केट में बोलते हैं और यूएस मार्केट में अलग टर्म सेम चीज़ के लिए डिबेंचर्स यूज़ होता है, ठीक है। और नाउ नेक्स्ट इज़ विल एक्सपैंड ऑन ऑल ऑफ दीज टर्म्स इन आवर नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। नो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हम जो देख लेते हैं पहले। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की है, वो सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें है कॉल मनी। कॉल मनी ये होता है कि अगर बैंक्स को क्या होता है, अपना सारा CRR SLR ये सब कोटा परसेंटेज पूरा करना होता है। बट अगर उनके पास कोई शॉर्टफॉल है, पैसे में कोई शॉर्टफॉल है, तो वो 1 दिन के लिए अगर किसी दूसरे बैंक से उधारी लेंगे, तो उनको हम उस उधारी को हम बोलेंगे कॉल मनी, क्योंकि ये 1 दिन की है, ठीक है। और ये जनरली ये क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म की होती है, ये अनकोलैटरलाइज्ड होती है। अनकोलैटरलाइज्ड मतलब कि जो ये उधारी लेंगे उसके बैकअप में कोई भी कोलैटरल नहीं होगा। कोलैटरल मीन्स कुछ गिरवी रखना, ठीक है। कुछ भी इन्होंने बॉन्ड्स वगैरह गिरवी नहीं रखे होंगे, कुछ भी, ठीक है। इसीलिए कोलैटरल नहीं है, अनकोलैटरलाइज्ड है। कॉल मनी 1 डे के लिए, ऐसा याद कर सकते हैं हम कि 1 दिन के लिए ही पैसा लेना है, इसीलिए तुरंत कॉल करके ले लो, कॉल मनी। नोटिस मनी जो 1 दिन से ज़्यादा बट 15 दिन से कम, 2 से फोर्टनाइट जिसे बोलते हैं, फोर्टनाइट तक के लिए, 14 दिन तक के लिए। टर्म मनी 15 days to up to 2 years, less than 1 year, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल की भी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है। ट्रेजरी बिल ये इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट करने की, ट्रेजरी बिल सिर्फ सेंटर इशू कर सकता है, स्टेट नहीं इशू कर सकता। ट्रेजरी बिल्स को स्टेट गवर्नमेंट नहीं इशू कर सकती। नाउ ट्रेजरी बिल क्या होता है? अगेन ट्रेजरी बिल बॉन्ड्स बाय गवर्नमेंट। बॉन्ड मैंने समझाया था फर्स्ट स्लाइड में ही कि इट्स नथिंग बट अ पीस ऑफ पेपर दैट पीपल आर गोइंग टू बाय एंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव सम इंटरेस्ट ऑन इट, ठीक है। सो ट्रेजरी बिल की जनरली जो मैच्योरिटी है वो इस तरह से होती है, 91 days, 182 days, 364 days। और जनरली क्या होता है कि RBI इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स RBI इज़ बैंकर्स बैंक एंड गवर्नमेंट्स बैंक। गवर्नमेंट के सारी चीज़ें मैनेज करना RBI ही करता है। तो अगर गवर्नमेंट को बॉन्ड्स इशू करने हैं शॉर्ट टर्म में, जिसको हम ट्रेजरी बिल बोलते हैं, तो वो RBI ही इशू करेगा, ठीक है। RBI जब इशू कर रहा है तो ये इसके बायर्स कौन होते हैं? इसके बायर्स शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो सकती हैं, LIC, या फिर RBI खुद भी खरीद सकता है, ठीक है। क्योंकि RBI सिर्फ गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसको सेल कर रहा है, बट अल्टीमेटली द लायबिलिटी लाइज ऑन द गवर्नमेंट एंड नॉट द RBI। तो RBI कैन बाय ऑल्सो, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरेस्ट तो RBI को भी मिलेगा ही, ठीक है। एंड ट्रेजरी बिल्स आर ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? ये होता है कि मैंने बताया था ये बॉन्ड है, इसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, और फिर इसके पीछे कुछ चिट्स होते हैं जिसका आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये 10-10 रुपये की चिट है, ठीक है। तो ये मंथली सपोज करो कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये मिल गया तो ये चिट हट जाएगा,
ये इंटरेस्ट मिल गया तो ये चिट हट जाएगा, बट इन चिट्स को हम बोलते हैं कूपन। कूपन, ठीक है, ये कूपन देकर हमें अपना इंटरेस्ट मिल रहा है। बट अगर ये कूपन एग्जिस्ट ही नहीं करते, अगर ये कूपन एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हम इसको बोलेंगे ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ज़ीरो कूपन बॉन्ड। और जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई ख़रीदेगा क्यों? कि भाई अगर मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा तो मैं ख़रीदूँगी क्यों? मैं 100 रुपये देकर मेरे को 100 रुपये थोड़ी ना चाहिए वापस 1 साल बाद। तो जनरली क्या होता है कि जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं उनका जो सेलिंग प्राइस होता है इट्स लेस दैन देयर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में 100 रुपये लिखा हुआ है तो इसका सेलिंग प्राइस 80 रुपये होगा। मैं 80 रुपये में इसको ख़रीदूँगी ताकि 1 साल बाद इसकी मेच्योरिटी इसकी 90 दिन की है, 90 दिन बाद मुझे 100 रुपये मिल जाए और मेरे को 20 रुपये का मुनाफा हो जाए। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो कूपन बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल्स आर ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज कैश मैनेजमेंट बिल्स। कैश मैनेजमेंट बिल्स इज नथिंग बट ट्रेजरी बिल्स विद लेस देन 91 days ऑफ मेच्योरिटी। ठीक है, और ये भी ज़ीरो कूपन होते हैं, दैट मीन्स दे विल नॉट पे एनी इंटरेस्ट। अगेन सेम चीज़ है, सेंट्रल बैंक नॉट स्टेट गवर्नमेंट, अगेन ये भी बॉन्ड्स हैं। ठीक है, now the next important element for government in money market is ways and mean advances. जो ways and mean advances हैं it's sort of a loan. now this is the loan कि अगर गवर्नमेंट का कोई मनी शॉर्टफॉल है, कैपिटल शॉर्टफॉल है, तो RBI विल गिव दिस लोन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, RBI डायरेक्टली गवर्नमेंट को लोन देगा फॉर मेच्योरिटी ऑफ लेट्स से 90 days। ठीक है, लेस देन 1 year ओनली, और ये लेस देन 1 year में गवर्नमेंट पे बैक भी कर देगा। ठीक है, इसको हम वेज एंड मीन एडवांस। नो द इम्पॉर्टेंट पार्ट हेयर इज़ कि ये इस टाइप का लोन दोनों को मिल सकता है, सेंटर को भी स्टेट को भी। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट के, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं इशू कर सकता, बट वेज एंड मीन एडवांसेस के थ्रू लोन ले सकते हैं स्टेट्स एंड सेंटर बोथ। नेक्स्ट terminology is certificate of deposit. Certificate of deposit is issued by scheduled commercial bank. ठीक है, now certificate of deposit is जनरली क्या होता है ना, ये मतलब ये 90% केसेस में ट्रू होगा कि जो भी शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं विच आर इशूड बाय कॉरपोरेशंस, जनरली दे आर अनकोलैटरलाइज्ड। सो इसमें तुम सारे इकट्ठे ले लो, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, प्रॉमिसरी नोट, कमर्शियल पेपर। ठीक है, ये सब अनकोलैटरलाइज्ड है और शॉर्ट टर्म है। ठीक है, अगेन ये भी देखो, कमर्शियल पेपर नो कोलैटरल, प्रॉमिसरी नोट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अनसिक्योर्ड मतलब अनकोलैटरलाइज्ड। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज़ लाइक अ टाइम डिपॉजिट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए आप ये इशू करते हैं बैंक्स वगैरह या कोई भी कॉरपोरेशन, एंड आफ्टर इट्स मेच्योरिटी इट पेज बैक, ऑफ कोर्स इसी का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हो गए मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें कोई डाउट है? कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इट्स जस्ट कि दे आर इशूड बाय कंपनीज, कमर्शियल पेपर एंड कमर्शियल बिल आर इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और
ये हो गया 7. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने एक इंस्ट्रूमेंट्स आपको, कैपिटल मार्केट ऑफ कोर्स जिसकी मैच्योरिटी 1 साल के बाद की हो, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद की हो, 20 साल के बाद की हो, 2 साल के बाद की हो, वट 1 साल के बाद की जिसकी मैच्योरिटी है वो कैपिटल मार्केट में आ जाता है. नाउ कैपिटल मार्केट में 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. वन इज़ बॉन्ड. बॉन्ड मैंने आपको बता दिया कि वो एक पेपर है जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो आप बाय करोगे और उसके कूपन्स के बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है. अब बॉन्ड्स भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, डिपेंड्स कि कौन इशू कर रहा है, किस पर्पज़ के लिए इशू हो रहा है. अब बॉन्ड्स में अगर हम देखें तो ये, हाँ, बॉन्ड्स ये है. देखो बॉन्ड के टाइप बहुत सारे हो सकते हैं. ये आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है, नाम से ही असेस कर लेना है कि ये बॉन्ड किस लिए होगा. फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट बॉन्ड्स. इम्पैक्ट बॉन्ड मतलब कि किसी वो बॉन्ड इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि इस इम्पैक्ट बॉन्ड्स को हम सोशल बॉन्ड्स भी बोलते हैं. सोशल बॉन्ड्स क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज़ का कोई पर्टिकुलर इम्पैक्ट आएगा या कोई आउटकम आएगा उसके बेसिस पे वो रिटर्न मिलेगा. ठीक है. They are issued generally by government if some kind of targeted social impact is seen. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए एक बॉन्ड इशू हुआ था वेयर इट वाज टारगेटेड दैट when 60% of females will be skilled, whoever are deployed, when 60% of skilled females are skilled, some agreed outcome will be paid. ठीक है. Yes, in the NSDC. तो it's basically result based financing. नेक्स्ट इज़ श्योरिटी बॉन्ड्स. श्योरिटी बॉन्ड्स जो होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि आप किसी की श्योरिटी दे रहे हो, तो ऑब्वियसली ये इंश्योरेंस कंपनीज जनरली देती हैं टू इंश्योर सम काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. ठीक है. दे आर यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर बैंक गारंटीज. ठीक है. और दे रिड्यूस इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स. ऑफ कोर्स बैंक से लेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बॉन्ड से थोड़ा सस्ता पड़ेगा. ठीक है. फर्मोसा बॉन्ड है जो एक ताइवान ने इशू किया होगा कोई. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हेयर इज, दिस इज इम्पॉर्टेंट, 81 बॉन्ड्स. नाउ व्हाट इज 81 बॉन्ड्स? जनरली जो कैपिटल मार्केट है शेयर और बॉन्ड की, इट्स रेगुलेटेड बाय सेबी. ठीक है. दिस मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी एंड मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई. बट दिस इज एन एक्सेप्शन, 81 बॉन्ड. वाई? बिकॉज हर बैंक को एक कैश रिजर्व एंड एडिक्वेसी रेशियो, जिसको CRAR भी बोलते हैं, ये मेंटेन करना होता है. एक्चुअली क्या हुआ था कि एक मीटिंग हुई थी बाज़ल में. बाज़ल इज़ द नेम ऑफ अ सिटी. इस मीटिंग में क्या हुआ था कि एक 2007 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये मीटिंग हुई थी जिसमें बासिल नॉर्म्स आए थे. बासिल में जो ये मीटिंग हुई थी इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स रिलीज़ किए थे जिसको बासिल नॉर्म्स बोलते हैं. दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज इसमें ये डिसाइड हुआ था कि सारे बैंक्स अपना एक पर्टिकुलर CRAR रेशियो मेंटेन करके रखेंगे. CRAR क्या होता है? CRAR इज़ लाइक, इन वेरी सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको एनालॉजी दूँ तो हमारे CRR और SLR की तरह ही CRR है. इट्स लाइक अ बैकअप और कवर in cases of bank run or for some kind of financial crisis.
उन टाइप की सिचुएशन के लिए अगर बैंक रन वगैरह हो जाए तो बैंक के पास कुछ अपने एसेट्स होने चाहिए, कुछ ऐसा रिज़र्व होना चाहिए जो बैंक अपने डिपॉजिटर्स को पे कर पाए. तो दिस CRR ratio right now is 9%. 9% फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. कौन से वाले? प्राइवेट. और Private, yeah. 11% फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पब्लिक वाले. ठीक है. सो दिस CRAR रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ उसी टाइम पे क्या हुआ था कि बासल अकॉर्ड में ही जब ये मीटिंग हुई थी 2007-8 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, उस टाइम पे क्या हुआ था, एक बॉन्ड्स अलाउड हुए थे जिसको हम बोलते हैं 81 बॉन्ड्स. 81 बॉन्ड्स ये होते हैं कि अगर कोई बैंक इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंक रन होने वाला है या फिर बैंकरप्सी पे आ गया है, तो वो बैंक 81 बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं. 81 बॉन्ड में क्या हुआ कि पीपल आर गोइंग टू बाय दिस बॉन्ड एंड विद दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट ना. बॉन्ड्स क्या होते हैं? फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं. Financial. बॉन्ड्स रेज करके, बॉन्ड्स रिलीज़ करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फंड्स रेज करती है बेसिकली. तो 81 बॉन्ड्स जो हैं वो इसी फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही बासल में अलाउड हुए थे कि अगर आप 81 बॉन्ड्स रिलीज़ करते हो तो दे कैन बी यूज्ड टू फाइनेंस और फुलफिल योर CRAR रेशियो. ठीक है. इतना समझ Right, में आ yeah. गया? Yeah. ठीक है. नाउ 81 बॉन्ड्स की सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन बासल अकॉर्ड and they are used by banks to fulfill their CRAR. Very important point is कि they are perpetual in nature. Perpetual means permanent and they do not have any maturity Permanent. period, and their interest may vary. It can increase also and it can decrease also. भाई अगर किसी बैंक को अपना CRAR पे करना है और अगर वो बैंक्रप्सी की कगार पे है तो वो अपना इंटरेस्ट रेट घटा भी सकता है ना, जो अपने बॉन्ड्स के थ्रू पे करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली उसका मेन मोटिव उस टाइम पे CRAR है. एंड देयर माइट कम टाइम्स वेयर इट माइट इंक्रीज द रेट्स ऑल्सो. ठीक है. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज they are instrument to fulfill CRAR. These bonds can be written down in case of bank failure or can be converted to equity. Equity means shares. They can be converted to shares also. written down का मतलब है कि सपोज करो कि अगर कोई बैंक पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया है तो रिटन डाउन मीन्स कि रिटन डाउन एक टैक्सेशन एक्सरसाइज होती है बेसिकली, जिसमें आपको बॉन्ड होल्डर्स को तो पे करना है उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है या फिर लेट्स से जो डिसाइडेड इंटरेस्ट है, बट वो आपकी जो प्रॉफिट बुक्स होती हैं उसमें से राइट डाउन कर देंगे, मतलब कि उसमें से इस ट्रांजैक्शन को हटा देंगे ताकि इसमें टैक्सेस ना काउंट हो, टैक्सेस इसके ऊपर ट्रांजैक्ट ना हो. ठीक है. तो इसलिए इसको बोलते हैं दे कैन बी रिटन डाउन इन केस ऑफ बैंक फेलियर एंड कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी ऑल्सो. और ऑफ कोर्स ये तो मैंने पहले ही बता दिया, दे कैन डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो. They can skip or decrease bond face value if their capital falls below a point. समझ में आ गया? Yeah. Now bond yield, सबसे important concept ये है bond yield. Bond yield क्या होता है? Bond yield ये होता है कि अगर मैंने 100 रुपये का एक बॉन्ड खरीदा है और मैं उस बॉन्ड को 1 साल की मैच्योरिटी से पहले, लेट्स सपोज कि
मुझे इस 1 साल बाद 110 रुपये मिलने थे, ठीक है, बट मैं 1 साल की मैच्योरिटी से पहले ये सागर को बेच देती हूँ और मैं ये बोलती हूँ कि मुझे अभी पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम इस बॉन्ड को भी थोड़ा सा सस्ते में ख़रीद लो, लेट्स से कि 90 रुपये में ख़रीद लो, ठीक है। तो सागर ये बॉन्ड 90 रुपये में ख़रीद लेगा, तो यहाँ पे मुझे 10 रुपये का मुनाफा होना था, बट सागर को 1 साल की मैच्योरिटी के बाद 20 रुपये का मुनाफा होगा। तो ये जो 20 रुपये हैं, इसको हम बोलते हैं यील्ड ऑफ बॉन्ड, यील्ड ऑफ बॉन्ड। इसको हम बोल रहे हैं ऑफ कोर्स पॉजिटिव यील्ड, क्योंकि ये तो मेरा ज़्यादा मुनाफा है ना, आपका सादा मुनाफा है, ठीक है। ये है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड कब बढ़ेगी? बॉन्ड यील्ड कब बढ़ेगी? जब मैं अपने बॉन्ड को सस्ते में बेच रही हूँ, और मैं सस्ते में बेचने के मेरे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेरी खुद की इमरजेंसी तो ऑफ कोर्स हो ही सकती है, बट इसका एक कारण इन्फ्लेशन भी होता है। अगर मेरे पास इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने बॉन्ड को सस्ते में बेच दूँ, क्योंकि मुझे इतना मुनाफा नहीं है जितना मेरे को मेरे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट से मिल रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड एक्चुअल में बढ़ती है, ठीक है। और इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बॉन्ड यील्ड का? Yeah, perfect, clearly. ठीक है। और इसी तरह से हम कहते हैं कि नेगेटिव बॉन्ड यील्ड कब आती है? नेगेटिव बॉन्ड यील्ड तब आती है जब इकोनॉमी स्ट्रेस में होती है। जब बहुत ज़्यादा रिसेशन आ रहा होता है। रिसेशन, नेगेटिव बॉन्ड यील्ड इज़ अ साइन ऑफ रिसेशन, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये इम्पॉर्टेंट है कि रिसेशन का एक सबसे बड़ा साइन होता है नेगेटिव बॉन्ड यील्ड, ठीक है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. Perfect. ठीक है। नेक्स्ट इज ये मैं ये और पढ़ा देती हूँ, उसके बाद हम इसको अभी क्लोज करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट इज, अगर हम शेयर्स की बात करें, ठीक है, अगर हम हाँ बताओ। After dinner, na? Means you are taking next session. After dinner, you are taking next session, na, madam? I'll take it somewhere late, around 11 बजे के अराउंड ना। Yeah, sure. As per your convenience. ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट होता है कि एक मैंने तुम्हें बताया था जीसेक मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट अपने लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स इशू कर रहा है उसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोल रहे हैं, या जीसेक शॉर्ट में, ठीक है। ये होता है जीसेक, ठीक है। नो, पहले क्या होता था कि ओनली इंस्टीट्यूशनल बायर्स मीन्स कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो कंपनीज हैं, दे आर ओनली अलाउड टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, नॉट पीपल लाइक अस, रिटेल बायर्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है। बट नाउ RBI has made this provision that even retail investors are allowed to buy government securities, और इसको हम बोलते हैं रिटेल RDG अकाउंट, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। इस अकाउंट के थ्रू हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में RBI के पास से, ठीक है। RBI has allowed retail investors to access government securities in both primary and secondary market. Individuals or passive participants like us, like you and me, can buy through non-competitive auctioning. Non-competitive auctioning मतलब जो institutional buyers हैं उनको government securities सिर्फ auction के थ्रू मिलती थी,
बट हमें नॉर्मल एक पोर्टल पे जाके हम जीसेक बाय कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट मतलब डायरेक्ट थ्रू आरबीआई, डायरेक्ट थ्रू आरबीआई। अगर हम डायरेक्ट किसी से कुछ सामान खरीद रहे हैं उसको प्राइमरी मार्केट बोल रहे हैं, बट इनडायरेक्टली खरीद रहे हैं, पहले ये सामान ऑलरेडी किसी ने खरीद लिया है, अब इससे मैं अगर खरीद रही हूँ तो ये सेकेंडरी मार्केट है। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई है ये आरडीएस है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, और इस अकाउंट का नाम गिल्ड अकाउंट होता है। ये रहा गिल्ड अकाउंट। ठीक है, गिल्ड अकाउंट। ठीक है, अब ये था आरडीजी। अब शेयर्स में बहुत सारे टाइप के शेयर्स होते हैं। इसमें एक शेयर ये होता है स्वेट शेयर। स्वेट शेयर होता है, स्वेट मतलब कि आप नाम से पता लगा सकते हो, हु स्वेट्स, एम्प्लॉयज़ स्वेट। एम्प्लॉयज़ को जो अगर कंपनी अपने शेयर्स दे देती है सस्ते रेट्स में या फिर व्हाटएवर, तो उसको हम स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। टू वाइडन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए और फिर एम्प्लॉयज़ की स्टेक होल्डिंग कंपनीज़ में बढ़ाने के लिए। ठीक है, लाइक अ नॉन मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय। ठीक है, ये होता है स्वेट शेयर्स। अब नेक्स्ट इज next, or let me see where I have written types of shares. Next is this one. देखो, ग्रीन शू ऑप्शन, ग्रीन शू, ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो शेयर्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर जस्ट टर्मिनोलॉजीज विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसी चीज़ें फालतू की आ जाती हैं। ठीक है, नाउ ग्रीन शू ऑप्शन होता है वेयर आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है कि किसी कंपनी के फ्रेश फर्स्ट टाइम अगर शेयर्स इशू होते हैं मार्केट में, इसको आईपीओ बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर शेयर इशू हो रहे हैं तो इसको आईपीओ बोलते हैं। बट पहले अगर शेयर्स हो चुके हैं, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, nth टाइम अगर इशू हो रहे हैं, तो इसको एफपीओ बोलते हैं। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ इज फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो आईपीओज अच्छी कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज पीपल आर वेरी ईगर टू इन्वेस्ट इन आईपीओज। अच्छा रिटर्न होता है, सब कुछ होता है। तो ग्रीन शू ऑप्शन बेसिकली ये होता है कि अगर किसी कंपनी ने ये डिसाइड किया हुआ है कि मेरे को 10 शेयर आईपीओ में निकालने हैं, ठीक है, बट वो एक्चुअल में 15 शेयर्स निकाल ले, प्री प्लान्ड अगर 10 था, 15 निकाल ले आईपीओ, तो उसको ग्रीन शू बोलते हैं, ग्रीन शू ऑप्शन। ठीक है, और नेक्स्ट इज बोनस इशू। बोनस इशू बोनस इशू होता है कि आप एग्जिस्टिंग जो स्टॉक होल्डर्स हैं उन्हीं को नया शेयर दे दो, सॉर्ट ऑफ बोनस है। ठीक है, स्वेट शेयर मैंने आपको बता दिया कि एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। स्क्रिप्ट शेयर और बोनस शेयर दोनों सेम है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए, अगर आप ज़्यादा शेयर्स दे दो तो। ठीक है, स्पॉट एक्सचेंज मार्केट होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में आती है। स्पॉट एक्सचेंज मार्केट में बेसिकली ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर गुड्स भी होते हैं इसमें इन्वॉल्व, तो उस मार्केट को स्पॉट एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। ऑफशोर फंड्स वो होते हैं ऑफ कोर्स जो म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट इन ओवरसीज़ और इंटरनेशनल मार्केट्स। बाहर, सपोज करो कि इंडिया में कोई ऑफशोर फंड्स की कंपनी है, वो बाहर यूएस की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करे और उधर से रिटर्न लेकर आए। ठीक है,
they are important thing is they are regulated both by RBI and SEBI. Generally In the MFs, sense की foreign currency to Indian currency, right? ऑफ कोर्स इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होगा ना वो इंडिया में आके, तो रिटर्न उनके हिसाब से आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मल्टी बैगर स्टॉक्स, ये रीड कर लेना, जिसमें 100% से ज़्यादा रिटर्न होता है उसको मल्टी बैगर कहते हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। शेयर बायबैक एक प्रैक्टिस होती है जिसमें एक कंपनी है, उसके 100 शेयर्स बाहर हैं लोगों के पास, पर अगर वो 50 शेयर अपने पास ख़रीद ले, इसका मतलब क्या है कि उस कंपनी ने अपनी ओनरशिप, अपनी स्टॉक होल्डिंग बढ़ा दी है, या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है बाकी के जो 50 शेयर बचेंगे, ऑफ कोर्स क्योंकि इनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, इनका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये शेयर बायबैक बेसिकली ये प्रैक्टिस होती है जिसमें कंपनी अपने ही शेयर्स खुद खरीद लेती है। इसमें ये गवर्नमेंट अगर यूज़ कर रही है तो ऑफ कोर्स डिसइन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर रही है, ठीक है। अभी हम इतना ही करते हैं, विल स्टॉप इट ओवर हेयर, एंड अभी क्लास भी 1.5 घंटे की हो गई है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई टेक इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। Sure, ma'am. Sure. ओके। Thank you.